Assalamu alaikum everyone, and welcome to another video from the playlist of First Year English Sinboard. And we are going to cover the play today, which is A Visit to a Small Planet. For those of you who are new to the channel, you must know that this isn't a very old channel, it's a fairly new one, and I've created it with the aim कि हम English को as a language समझें और सीखें और आगे बढ़ें. Because what happens most of the time इसके स्टूडेंट्स सिर्फ रट के तो पढ़ लेते हैं, but as a language हम इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं. So no matter which topic we are doing, whether it's a chapter, whether it's a poem, whether it's a play, we are going to read it as a language and understand it as a language. You can find other videos here. Today we are covering A Visit to a Small Planet, which is the only play in Sinboard English first year. We have a playlist for second year as well. So if you know anyone who studies in second year, then refer them to this channel. Okay, so today the play we are covering is A Visit to a Small Planet, right? And just by reading the topic, you can understand it's about science and it's about the space travel, because visiting a planet requires you to travel through the space, right? But what's interesting in this play is that humans aren't the one who have traveled to a far off planet. It's actually an alien who has come to Earth from far away into the space. So far away that humans haven't been able to even understand कि ये alien आए कहाँ से. ठीक है? This play is written by a very famous American author. Before we proceed towards the play, we'll try to understand a little bit about him, and then we'll move further. So I hope you can all see the picture on the screen of the great author Gore Vidal, and Gore Vidal described himself as America's current biographer. That means he believed in noting down the American history, the way he's looking at it, the what's happened. And because he was born into a political family, his grandfather actually was a senator from the state of Oklahoma. So he was born into a very elite social class, and he had this political family जहाँ पे he could see what was happening and what has happened. So America's current biographer का मतलब है he was basically writing about the country America, not about any person, ठीक है, and giving his own political commentary. Other than this, his work is been widely applauded for its depth of satire and biting wit. तंज और मज़ा हम उर्दू में कहते हैं. The same is what Gore Vidal did in his work, using satire, using humor, and also criticizing the society on certain aspects, using the satire. ठीक है? His original his birth name was Eugene Luther Vidal. He was born on October 3rd, 1925, and he has died in 2012. That means it's a bit long ago. ठीक है? He grew up in an elite family, that means the very top class, the upper class. He was the son of an aeronautics instructor, his father. And then his grandfather, as we have just read, was a senator from the American state of Oklahoma. So right from his childhood, he had great prospects around him. But ignoring all of them, he chose to become an author, not a political scientist. Okay? So this was about the author, and आपकी book के अंदर author की biography separately mention नहीं है. So this is something I have added up आपकी understanding के लिए, ताकि आप लोग इसको easily आराम से समझ सकें. I hope you all understand it. Now going further into the topic, अगर हम अब आगे चलें, so what we have now is a little bit of introduction about the play. And आपकी book के अंदर भी ये mention है. Let's zoom a little bit ताकि we can understand it quite clearly कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे. Gore Vidal's Visit to a Small Planet is a science fiction comedy. As you can see the word written here, science fiction. Fiction means something that's not true, something that's fantasy, right? और अगर साथ में हम science का word लगा दें, it means the story we are going to read will have something related to science and technology.
And as you can see the name of the play, a visit to a small planet, space travel, exploration, visiting another planet, obviously spaceships and everything. This is a science fiction. साथ में लिखा है comedy. That means this isn't a very serious play. It's intended to make people laugh. That means humor and satire are one of the biggest elements here. ठीक है? It follows the exploits of Cretin. Exploits का मतलब होता है कि Cretin basically didn't just come here to have fun. Cretin was here on an adventure. और बेसिकली ये अपने मज़े में क्या क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे ऑन अर्थ विद ऑल ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी. दैट्स व्हाट द प्ले इज़ अबाउट. ठीक है. हु इज़ क्रेटन? ही इज़ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट, यानी कि बहुत दूर का प्लानट. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दिस प्लानट इज़ टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस्ड देन अर्थ. एंड कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड. इसीलिए when he lands on earth he observes earth as his hobby. यानी कि he believes कि earth और earthlings यानी humans को पढ़ना उनकी सिर्फ hobby है, उनके बारे में समझना as हमें कहना चाहिए lab rat treat करते हैं humans को, because his race or his planet is far more ahead than earth. He intends to see civil war during 1861. इनका असल प्लान क्या है? The actual plan was कि ये 1861 में लैंड करना चाहते थे अमेरिका के अंदर ताकि वो सिविल वॉर के टाइम को देख सकें. दिस वाज अ टाइम पीरियड जब अमेरिकन नेशन जो कौम है उनकी, दे हैड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द स्टेट वेयर दे वर आस्किंग फॉर इक्वल राइट्स एंड अ लॉट ऑफ बेसिक राइट्स फॉर द पीपल. ठीक है. बट सम मिस्टेक हैपन्स ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट और ड्यूरिंग हिज जर्नी फ्रॉम हिज प्लैनेट टू अर्थ. और 1861 के बजाय ही लैंड्स हेयर नियरली अ सेंचुरी लेटर, यानी कि 1900s में लैंड करते हैं. ठीक है. और लैंड कहाँ करते हैं? ये मनासस के शहर वर्जीनिया के अंदर, विच इज़ इन अमेरिका ऑब्वियसली. नेवरदलेस, यानी कि इवन दो ही इज़ अ सेंचुरी लेट, बट स्टिल ही डिसाइड्स कि मैं यहाँ पे रुकूंगा एंड आई एम गोइंग टू हैव माई ओन फन. यहाँ लिखा है स्टार्ट हिज ओन वॉर. यानी कि एक अकेला एलियन, हाउ स्ट्रॉन्ग वुड द एलियन बी if he decides कि मैं अकेला अपनी जंग यहाँ स्टार्ट कर दूँ against all the countries and all the billions of humans living here. So this statement shows कि ये alien कितने ज़्यादा advanced थे as compared to the rest of the people on earth. ठीक है. यहाँ पे और लिखा है कि भाई though the play was written 1957 और आज हमारे पास है 2024, it's still relevant. Relevant का मतलब है we can still relate to it, we can still understand it, we won't have any confusions understanding the concepts. Why? Because it was far ahead of its time. जब लिखा गया था तब इतनी एडवांसमेंट्स थी नहीं, लेकिन स्टोरी हैज़ वेरी सक्सेसफुली encompassed all of that जो कि अब हमारे पास है. ठीक है. The story and characters are simple to understand. Weddell originally wrote this as a play, यानी कि इसको उन्होंने टेलीविज़न के तौर पे नहीं लिखा था, सॉरी इसको एज अ प्ले के तौर पे नहीं लिखा था, बल्कि इसको एक टेलीविज़न स्क्रिप्ट यानी कि टेलीविज़न के ड्रामा के लिए लिखा गया था. जब वहाँ बहुत सक्सेस मिला, ही रीवर्कड इट, दोबारा से इसमें एडिशंस की, कुछ एडिट्स किया, कुछ मॉडिफिकेशंस की, और फिर स्टेज के लिए प्ले के तौर पे लिखा गया. एंड देन लेटर ऑन इवन मोर सक्सेस केम टू इट, और फिर इसके ऊपर एक पूरी की पूरी मूवी भी बन चुकी है. यू कैन फाइंड इट मे बी इफ़ यू सर्च ऑन इंटरनेट. Here, only the first act of the play is given with few changes for better performance. हम इस वीडियो में और आपकी बुक के अंदर क्या पढ़ेंगे? Only the first act of the play, जिसके अंदर 3 scenes हैं, and with all the descriptions, ताकि everybody can understand them thoroughly. I hope everybody understands it clearly. Moving ahead, हमने आपके पास राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने प्ले के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ लिया है. Now we have the characters. इस प्ले के अंदर we don't have a lot of characters, और जितने भी characters हैं हमारे पास they are presenting they are playing an important part in the play, obviously बात है. लेकिन out of these characters there are some major and obviously some minor characters as well. हमारे इस पूरे के पूरे प्ले के जो central character हैं, you people can obviously understand कि it's the alien who is visiting the earth, right? और उस एलियन का नाम क्या है? उसका नाम है क्रेटन. ठीक है. दिस ऑन नंबर 1, दिस इज़ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट फार ऑफ प्लानट जो कि अर्थ के कंपैरिजन में इज़
a lot advanced in terms of technology and advancements. ठीक है. Then we have the second character, जहाँ पे लिखा है आपके पास रॉजर स्पेल्डिंग. रॉजर स्पेल्डिंग हमारे पास हैं एक टीवी ब्रॉडकास्टर, यानी कि एक टीवी शो को होस्ट करते हैं. एंड ही बेसिकली लोगों तक, ऑडियंस तक खबरें पहुँचाना, व्यूज़ पहुँचाना अबाउट सर्टेन स्टेट एलिमेंट्स कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो. सो ही इज़ अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, द आर्मी, द गवर्नमेंट एंड द पीपल. ठीक है. Then we have his daughter Ellen Spalding. Ellen जो है वो इनकी बेटी हैं. She is a young energetic girl who has dreams and a typical young girl basically. Then we have Mrs. Spalding जो कि है Roger Spalding की wife and obviously Ellen की mother. और Mrs. Spalding doesn't really have a grasp of the current affairs, यानी कि इनका कुछ as such understanding नहीं है about the current situation, current scenario. और इस पूरे प्ले के अंदर भी आप इनका रोल ऐसे ही देखेंगे कि जो मेन स्टोरी चल रही है उससे हट के कोई दूसरी ही इनकी फ़िक्र है. So you will see कि she is, you know, some sort of not related to what's happening, या फिर she isn't aware कि जो कुछ हो रहा है उसके बारे में. Then we have on number 5 John Randolph जो कि है Ellen Spalding के fiancé, and he is a person जिसको Roger Spalding बिल्कुल पसंद नहीं करते, because Roger Spalding believes कि इंसान के पास होने चाहिए बड़े बड़े से dreams, that you should have, you know, bigger dreams and you should be working hard towards them, और ये और वो, और you know ये हासिल करना और वो हासिल करना है. And John here is the complete opposite. John का प्लान ये है कि he is going to grow peanuts on his farm, यानी कि he doesn't want any big lavish adventurous job, he just wants to grow peanuts on his farm, and that's why Roger Spalding doesn't like him at all. Then we have General Powers. General, as you can see, जनरल हम किसके साथ लगाते हैं? सोल्जर्स के साथ लगता है, फौजियों के साथ लगता है, स्पेशली द वंस ऑफ हायर रैंक. जनरल पावर्स का ताल्लुक़ यूएस आर्मी से है, एंड ही इज़ इन द प्ले इन्वेस्टिगेटिंग दिस सीन ऑफ क्रेटन कमिंग टू अर्थ, लैंडिंग ऑन द प्लानट अर्थ, देम नॉट नोइंग कि वो यहाँ पे क्यों है, एंड हिम फाइंडिंग आउट और ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई क्रेटन का अंडरलाइंग रीज़न क्या है, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड हिज विजिट. ठीक है. Then we have his aide, and aide का मतलब है इनके असिस्टेंट, इनके हेल्पर के तौर पे जो एक और सोल्जर हैं. और these are the characters in this play, and we will see कि ये characters किस तरीके से हमारे play को आगे लेके जाते हैं. ठीक है everyone. और यहाँ पे I think I should add up another point कि you guys should know कि जब भी हम play को पढ़ते हैं तो play के कुछ elements होते हैं. अभी हमने आपके पास कैरेक्टर्स को देख लिया, इट्स वन ऑफ द एलिमेंट्स, लेकिन प्ले और किन चीज़ों से मिलके बनता है? प्ले में प्लॉट भी शामिल होता है, सेटिंग भी शामिल होती है, सारी चीज़ें शामिल होती हैं, राइट. तो अगर हम आपके पास सिर्फ इसी प्ले की बात करें, विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, तो इसकी कुछ एलिमेंट्स हैं, राइट. एलिमेंट्स क्या हैं? हमारे पास होना चाहिए प्लॉट. प्लॉट में क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और इंसिडेंट्स. अब इस प्ले में इवेंट्स क्या चल रहे हैं हमारे पास? वी हैव फर्स्ट क्रेटन लैंडिंग ऑन प्लैनेट अर्थ. Then we have humans trying to find out why is he here. Then we have him revealing his supernatural abilities, and then towards the end he reveals his actual purpose. So that's the sequence in which the events are going. ठीक है. Then we have the setting. अब as I just mentioned कि in this book or in the videos we are going to be doing act number 3 only. So in act number 3 we have got how many scenes? We have got 3 scenes in act number 3. ठीक है. And every single scene has got its own setting, right? यानी कि हर सीन हमारे पास अलग अलग जगह पे हो रहा है, बिकॉज जाहिर सी बात है इन सम ओकेजन दे आर, क्या कहना चाहिए, इन अ स्टडी रूम, इन अनदर सीन दे आर सिटिंग इन अ लिविंग रूम, राइट. तो फिर एवरी सिंगल सीन हैज़ गॉट इट्स ओन सेटिंग. सेटिंग का मतलब क्या है? इट्स द टाइम एंड द प्लेस एंड द लोकेशन वेयर द स्टोरी इज टेकिंग प्लेस. ठीक है. Then we have the characters. We just went through the characters, 7 characters that we have in the play. ठीक है. After the characters we have the dialogues. This is a very important element in the play because this determines कि आपके जो characters हैं आपस में how are they interacting with each other, what are they communicating about, and how are they communicating. So this can also come in your exam actually कि what is the play and what are its elements. Play basically होता क्या है? Play is a specific piece of writing जो कि हम क्यों लिखते हैं? ताकि उसको परफॉर्म किया जाए ऑन द स्टेज. यानी कि व्हेन वी राइट अ स्टोरी इट्स एम्ड टू बी रेड, जाहिर सी बात है.
But when we write a play, what it's intended, it's a piece of writing which is written for the purpose purpose of being performed on stage. I hope it clears any confusions that you guys might have. अगर हम एक स्टोरी लिख रहे हैं, ऑब्वियसली वी नेवर राइट इट फॉर द पर्पस कि ये अब जाके स्टेज पे परफॉर्म की जाएगी. वी राइट इट. वाई डू वी राइट इट? बिकॉज हम उसको पढ़ने के लिए लिखना चाहते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव एक बड़े से प्ले को आसानी से समझने के लिए वी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एक्ट्स. तो आप कह सकते हैं कि एक्ट्स आर बेसिकली द स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द प्ले. जैसे जब भी हम आपका सिलेबस भी कवर करते हैं, वी हैव लाइक द फर्स्ट टर्म, द सेकंड टर्म, द फाइनल टर्म, राइट? So acts are also the smaller parts of the play. The play that we are doing right now, how many parts we have? We have got 3 acts into actors. Let's move to scene number 1 of act. What do we have here now? The room is comfortably balanced between the expensively decorated and homely. This is the setting. If we are performing this play, we have to make sure that we hit every single point that's discussed here. The room is comfortably balanced. The room is looking expensive. The room is also very homely. Yani कि it has got some luxuries in it, but then at the same time very homely, very simple. Roger Spalding is concluding his TV broadcast, yani कि his TV show, his current affairs show. He is a middle-aged, unconscious and resonant man. He is a middle-aged man. That means maybe he's 60s or 70s, 50s maybe. He is looking very active, very healthy and very resonant as well. His wife is looking bored. He is doing his show, that's why he's enthusiastic. He's very, this is like that and this is like that. He's doing it with a lot of passion. And then we have his wife in the same room who's looking very bored and vague. It's like she's just not there. She's knitting passively. She's thinking about something else. She's doing something else. Something else is happening in the room. 2 technicians are on hand helping Mr. Spalding operating the equipment. We have his daughter as well, who's also in the room, and she is obviously Ellen. We just read her name, and she's a lively girl of 20 years, and she fidgets as she listens. It looks like even Ellen isn't completely 100% listening to what her father is saying. His wife is completely out of it. Lekin Ellen looks a bit interested, but then again looks like maybe she's thinking of something else too. Okay, everyone? Now moving ahead, we have got the play in front of us. और यहाँ से हम जल्दी से देख लेते हैं कि what is it we need to read. Let me just add it properly on this screen. अच्छा भाई, अब हमारे पास क्या है? Mr. Spalding on the microphone. As we just read, he is concluding his TV show. अपनी TV show को वो ख़त्म कर रहे हैं. ठीक है. So he says into the microphone, and so according to General Powers is a high official in the US Army. General Powers has said that the flying object which has given rise to so much of Earth's orbit, यानी कि the people on Earth have spotted a very foreign flying object that is flying in Earth's orbit. So people are speculating maybe it's a spaceship, maybe it's an enemy, maybe it's a weapon, maybe it's something, maybe it's that, maybe it's not. There's a lot of speculation. So in this show, Mr. Spalding is telling everyone that General Powers himself, one of the most reliable sources, has said that nothing is to be believed. It's not a secret weapon. Many people believe it's a secret weapon of our country, but it's not. General Powers is also saying that it isn't even a spaceship, because some lunatic elements, lunatic means some crazy people, are thinking that maybe aliens are coming down on Earth. General Powers said no, that's not the case. And Mr. Spalding is saying कि General Powers has assured me, General Powers ने उनको assured करवा दिया है, इस बात का यकीन दिलाया है कि it's highly doubtful there is any other form of life on any other planet. कह रहे हैं कि वो तो ये बात भी कह रहे हैं कि इस पूरे के पूरे स्पेस में जब इतने सारे planets नज़र आते हैं, Powers is saying it's doubtful कि वहाँ पे कोई life हो भी.
तो अगर कोई स्पेसशिप हो ही नहीं सकती बिकॉज देयर इज़ नो लाइफ आउटसाइड, हम ही हैं सिर्फ, हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, ठीक है। इफ़ एनी ट्रैवलिंग इज़ टू बी डन, यानी कि अगर कोई स्पेस में ट्रैवलिंग करना है, स्पेस को ट्रैवल करना है, जनरल पावर्स बिलीव्स के वजह से हम ही कर सकते हैं। हमसे मतलब है इनका अमेरिकन्स, यानी कि ही थिंक्स कि वट एवर इज़ लेफ्ट टू डू, वट एवर इज़ सपोज टू बी डन, वो सिर्फ हमारे पास है एनर्जी और एबिलिटी, और कोई नहीं कर सकता दुनिया में, ठीक है भाई। एंड दोज आर इज एग्जैक्ट वर्ड्स, कहते हैं कि ये थे इनके एग्जैक्ट वर्ड्स, जिसको सुनने के बाद एवरी वन नाउ मस्ट बी अश्योर्ड कि कुछ भी डरने की बात नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट जो कि फॉरेन है, इट्स नॉट आर सीक्रेट वेपन, इट्स जस्ट सिंपली मे बी एन एस्टेरॉइड और समथिंग, ठीक है। रॉजर स्पेल्डिंग ये सब कहने के बाद कहते हैं गुड नाइट टू मदर एंड फादर अमेरिका फ्रॉम माई ओल्ड होम स्टेट, ही सेज गुड नाइट टू एवरीवन, और फिर वो अपने ब्रॉडकास्ट को एंड कर देते हैं, ठीक है। देन वी हैव द सीन मूविंग अहेड, अब हमारे पास हैं टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन जो हैं वो मिस्टर स्पेल्डिंग को बोलते हैं गुड शो, दैट वाज अ वेरी गुड शो मिस्टर स्पेल्डिंग, आपने बहुत अच्छा शो किया, वेरी नाइस। और व्हाट हैपन्स देन, उसके बाद फिर स्पेल्डिंग बोलते हैं थैंक यू, टेक्नीशियन सेज यस सर यू वर राइट ऑन टाइम, यू वर राइट ऑन टाइम, आपने बहुत ज़बरदस्त शो किया। स्पेल्डिंग नॉट्स वेरीली, ही इज़ अ बिट टायर्ड, ही इज़ ही जस्ट वांट्स, मे बी थक गए हैं वो अपना शो करने के बाद। मिस्टर स्पेल्डिंग, मिसेस स्पेल्डिंग बोलती है वेरी नाइस, तुमने बहुत अच्छा शो किया भाई, बहुत मज़ा आया हमें तुम्हारा शो सुन के। स्पेल्डिंग बोलते हैं बॉयज़ को थैंक यू करते हैं दोनों टेक्नीशियंस को, वो दोनों चले जाते हैं। मिस्टर स्पेल्डिंग देन सेज डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट, अपनी बेटी से पूछते हैं वो तुम्हें मेरा शो कैसे लगा, डिड यू लाइक इट, डिड यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। एलन बोलती हैं बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। स्पेल्डिंग फिर पूछते हैं उनसे कि अच्छा अगर अच्छा लगा तो बताओ ज़रा मैंने क्या क्या बातें कही थी, बिकॉज ही इज़ सस्पेक्टिंग कि एलन ने कुछ सुना नहीं है उनके शो के अंदर। तो नाउ ही इज़ आस्किंग हर अगर तुम्हें इतना अच्छा ही लगा था तो ज़रा मुझे तफसीलन बताओ मैंने क्या क्या बातें कही हैं। अब एलन फंस गई। एलन बोलती हैं कि दैट्स नॉट फेयर, ये तो सही बात नहीं है, मैं कैसे आपको हर चीज़ बताऊँ। स्पेल्डिंग सेज इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग, कहते हैं कि ये बहुत अजीब सी बात है कि मैं इतने सारे लोगों को तो अपना शो सुना रहा हूँ और मेरे अपने घर में उसी कमरे में बैठी हुई जो मेरी बेटी है वो नहीं सुन रही। एलन सेज कि आई ऑलवेज लिसन, मैं हमेशा सुनती हूँ, एंड यू नो दैट मैं हमेशा सुनती हूँ, वी लव योर ब्रॉडकास्ट, मिसेस स्पेल्डिंग भी बोलती हैं, और आई डोंट नो अगर तुम ये नहीं करते शोज़ तो हम क्या करते हैं। मिस्टर स्पेल्डिंग एक और तंज मारते हैं, स्टार भूखे मरते तुम लोग और क्या करते हैं। एलन फिर पूछती हैं कि आई डोंट नो कि जॉन अभी तक क्यों नहीं आया, जॉन कौन है, इनके फियांसी हैं, एंड शी इज़ थिंकिंग कि अब तक तो जॉन को आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। मिस्टर स्पेल्डिंग फिर से एक तंज करते हैं, अब वो बोलते हैं जो भी है वजह कोई काम नहीं होगा, किसी फालतू काम में ही रुका हुआ होगा, अगर काम होता तो वापस वो आ चुका होता है यहाँ पर, ठीक है एवरीवन। तो मिस्टर स्पेल्डिंग बाय नेचर ही सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो कि लोगों के ऊपर सार्केज़म, लोगों को तंग करना, लोगों को समझना कि उन्हें कुछ नहीं आता, सही है, एंड जॉन को तो स्पेशली वो ऐसे करते हैं। फिर एलन ने यही बोलती है प्लीज़ स्टॉप इट, जॉन वर्क्स वेरी हार्ड, जॉन बहुत मेहनत करते हैं और आपको पता है यह। मिसेस स्पेल्डिंग बोलती हाँ भाई ही इज़ अ परफेक्टली नाइस बॉय, कोई मसला नहीं है, ही इज़ वेरी गुड, आई लाइक हिम। स्पेल्डिंग बोलते हैं हाँ मुझे पता है सब कुछ, ही हैज़ एवरी वर्च्यू, उसमें हर वर्च्यू का मतलब उसमें हर क्वालिटी शामिल है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी नहीं है, और वो क्वालिटी क्या है, गेट अप एंड गो, यानी कि कुछ करना, कुछ उठना करना, प्लान करना बनाना, ये क्वालिटी बिल्कुल नहीं है जॉन में। तो एलन बोलती हैं प्रिसाइसली, अगर मैं बहुत आपसे डायरेक्ट होकर बात करूँ तो ही डजंट वांट टू गेट अप, उसे उठने की ज़रूरत ही नहीं है, ही डजंट वांट टू गो, व्हाई, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी गॉट व्हाट ही वांट्स टू बी, ज़रूरत ही नहीं है उसे, ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। और इन लोगों का प्लान क्या है, एलन और जॉन का, देयर प्लान इज़ कि हम लोगों ने एक फार्म लगाना है और अपने फार्म के ऊपर दे आर गोइंग टू ग्रो सम वेजिटेबल्स, सम मे बी नट्स, सम फ्रूट्स, एंड दैट्स देयर प्लान। और करेंगे वो प्लान तो बिल्कुल हमारा सक्सेसफुल चल रहा है, देयर इज़ नो नीड टू बी वरीड अबाउट इट। तो स्पेल्डिंग फिर एलन के ऊपर भी कमेंट करते हैं एक सार्कास्टिक सा, मोर थैंकलेस देन अ सर्पेंट्स टूथ इज़ एन अनग्रेटफुल चाइल्ड। अब यहाँ पे इन्होंने एक कोटेशन को बताया है, लेकिन वो कोटेशन बेचारों ने गलत कोट कर दिया, यहाँ पे थैंकलेस के बजाय ही शुड हैव सेड मोर डेडली। एलन यही बोलती हैं कि मेरे ख्याल से आपने कोटेशन ही गलत बोल दिया, यहाँ पे मोर थैंकलेस नहीं बल्कि आपको मोर डेडली बोलना चाहिए था, दैट्स द रियल कोटेशन। तो स्पेल्डिंग बोलते हैं जो भी कोटेशन थी लेकिन उसका सेंटिमेंट तो यही है ना कि अनग्रेटफुल बच्चे जो हैं बहुत बुरे होते हैं, और वो एलन को अनग्रेटफुल बोल रहे हैं, वाई, बिकॉज शी इज़ डिपेंडिंग जॉन, सही है।
स्पेल्डिंग बोलते हैं फिर, सॉरी मिसेस स्पेल्डिंग बोलती हैं प्लीज़ डोंट क्वेरल, लड़ाई झगड़ा मत करो अब तुम लोग। इट ऑलवेज गिव्स मी अ हेडेक, मुझे हमेशा सर में दर्द होता है तुम लोगों के इस लड़ाई झगड़े से। स्पेल्डिंग सेज आई नेवर क्वेरल, मैं तो कभी झगड़ा नहीं करता। आई एम मैरली रीज़न, मैरली का मतलब सिंपली, मैं तो सिंपली वजह बता रहा हूँ कि तुमने जो कहा उसका रीज़न ये है, जो मैंने कहा उसका रीज़न ये है। मत यहाँ पे जो मिसेस एलन बैठी हैं, शी इज़ अ नो इट ऑल। नो इट ऑल का मतलब है शी इज़ ट्राइंग टू एक्ट लाइक उसे सब कुछ पता है। एलन बोलती हूँ डैडी प्लीज़ यू विल टेल मी आई शुड मैरी फॉर मनी। बोलती अब आप ये मुझे कहेंगे कि मैं किसी से पैसे के लिए शादी करूँ? तो स्पेल्डिंग बोलते हैं हाँ बिल्कुल, व्हाट्स रॉन्ग इन इट, एक वेल्दी मैन से शादी करो। द हॉरर ऑफ इट हैज़ ऑलवेज एल्यूडेड मी, कह रहे हैं कि मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग इस बात को सुन के इतना परेशान क्यों हो जाते हैं। यानी कि ही इज़ like I don't know why people are so worried of it. You can marry a wealthy man, you can have a happy healthy life, लेकिन कहते हैं कि लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए क्या विश है? You marry someone hard working ambitious, यानी कि तुम किसी मेहनती शख्स से शादी करो जो कि ambitious हो, जिसके पास ज़िंदगी में गोल्स हो, जो कि कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है। एक ऐसा शख्स नहीं जो कि अपनी फार्म के ऊपर बैठ के सारी ज़िंदगी पीनट्स ग्रो करता रहे। फिर से जॉन के ऊपर एक और तंज, तो एलन ने फिर से करेक्ट कर दिया, नहीं नहीं हम पीनट्स नहीं बल्कि हम क्या ग्रो करेंगे, हम तो वॉलनट्स को ग्रो करेंगे। ठीक है, तो बेचारे मिस्टर स्पेल्डिंग गुस्से में जितने भी तंज करे जा रहे हैं, दे आरंट गोइंग ऑन द राइट टारगेट बिकॉज ही इज़ ऑलवेज सेइंग समथिंग रॉन्ग इन इट। जॉन फिर हैं, अचानक से जॉन एंटर हो जाते हैं ब्रेथलेसली। ब्रेथलेसली का मतलब है ही मस्ट हैव नोटिस समथिंग आउटसाइड, यानी कि कुछ ना कुछ तो बेचारे के साथ हुआ है जो इतना हाँफता काँपता घर के अंदर एंटर हो रहा है। जॉन बोलते हैं कम आउट क्विक, जल्दी से बाहर निकलो, जल्दी से बाहर निकलो। कुछ बाहर लैंड कर गया, यहाँ पे यहीं पे आके रुक गया, इट्स कमिंग दिस वे। स्पेल्डिंग बोलते हैं व्हाट्स गोइंग टू लैंड, क्या चीज़ है, क्या बोल रहे हो तुम ये? तो जॉन बोलते हैं द स्पेस शिप, ये वही स्पेस शिप है जिसका जिक्र वो अपने शो में कर रहे थे। ठीक है, व्हाट्स गोइंग टू लैंड द स्पेस शिप। स्पेल्डिंग बोलते हैं अपेरेंटली यू डिडंट हियर माई ब्रॉडकास्ट, फिर से वो ज़रा उसमें आ जाते हैं थोड़े से गुरूर में कि तुम अगर मेरे शो को सुनते तो तुम ये बात ना बोलते। मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि वो ना कोई स्पेसशिप है ना कोई सीक्रेट वेपन है। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन इज़ अ मीटियोर, बोलते हैं वो सिर्फ एक मीटियोर है। मीटियोर का मतलब है स्पेस के रॉक, स्पेस के अंदर घूमने वाले, कोलाइड करने वाले पत्थर, और कहते कोई स्पेसशिप नहीं है वो। लेकिन जब तक मिस्टर स्पेल्डिंग की सारी बातें बोलें, जॉन बाहर निकल जाते हैं और उनके पीछे एलन, स्पेल्डिंग, मिस स्पेल्डिंग सब लोग आ जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई स्पेसशिप ही है तो दे वुड वांट टू सी कि वो कैसी स्पेसशिप है और उसमें क्या हो रहा है। तो मिसेस जब ये लोग बाहर निकलते हैं, इट हैज़ंट येट लैंडेड, बल्कि अभी भी वो जो स्पेसशिप है, वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो अभी भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो मिसेस स्पेल्डिंग परेशान होकर बोलती हैं देखो इट्स फॉलिंग, समथिंग इज़ फॉलिंग, कोई चीज़ गिर रही है, हमारे घर के ऊपर ही ना गिर जाए आके। स्पेल्डिंग बोलते हैं कि द ऑड्स अगेंस्ट बीइंग हिट आर, अब दूर से जब कोई हमें चीज़ गिरते हुए नज़र आती है सो ऑब्वियसली उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। अब एक्चुअली तो मून बहुत बड़ा है, बट हम यहाँ से जब देखते हैं हमें छोटा सा नज़र आता है। द सन इज़ ऑल्सो ह्यूज इन साइज, लेकिन व्हेन वी लुक एट इट फ्रॉम अर्थ इट लुक्स वेरी स्मॉल, राइट। तो ये अगर स्पेसशिप बड़ा है भी, सो फार जब ये गिर रहा है नीचे इट लुक्स वेरी स्मॉल। तो मिस्टर स्पेल्डिंग ये बोलते हैं इतने छोटे से ऑब्जेक्ट के गिरने से तो कोई नुकसान होना भी नहीं है। जॉन मिलते हैं, जॉन बोलते हैं 10 मिलियन टू 1, बेशक चांसेस बहुत कम हो लेकिन चांसेस हैं तो, और मेरा ख्याल है कि वो लैंड कर रही है, वो फॉल नहीं कर रही है, यानी कि इट्स नॉट फॉलिंग, वो चीज़ गिर नहीं रही है, बल्कि इट्स वेरी प्रिसाइसली कमिंग टू लैंड लाइक अ प्लेन। स्पेल्डिंग बोलते हैं ओहो आई एम श्योर इट्स अ मीटियोर, मुझे तो यकीन है कि वो सिर्फ एक मीटियोर है, एक स्पेस रॉक है, कुछ भी नहीं है। मिसेस स्पेल्डिंग बोलती हैं ठीक है लेकिन शुडंट वी गो टू डाउन टू द सेलर, हमें सेलर मतलब हमें नीचे बेसमेंट में नहीं जाना चाहिए अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। स्पेल्डिंग बोलते हैं अगर ये मीटियोर ना भी हुआ, अभी तक इन्होंने नहीं माना कि ये कोई स्पेसशिप है, बोल रहे हैं अगर चलो ये कहें कि मीटियोर नहीं है तो फिर ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी कि ये कोई ना कोई है जो हमें धोखा दे रहा है, यू नो कोई मैजिक कर रहा है हमारे साथ, मैस हिस्टेरिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एलन बोलती हैं कि नहीं आई थिंक इट्स अ रियल स्पेसशिप, आई एम श्योर इट्स अ स्पेसशिप। स्पेल्डिंग बोलते हैं नहीं, अच्छा फिर ये भी हो सकता है कि ये वेदर बलून हो, यानी कि कोई पैराशूट, कोई एयर बलून टाइप चीज़ हो, दैट्स व्हाट इट इज़। वो कहते हैं कि बिल्कुल यही है, क्योंकि जनरल पावर्स ने करी तो मुझे बोला है कि ये कोई स्पेसशिप नहीं है, कोई वेपन नहीं है। जॉन बोलते हैं इट्स लैंडिंग, ये बिल्कुल इनके घर के ऊपर लैंड करी आके। स्पेल्डिंग पुलिस को कॉल करने चाहते हैं, फिर बोलते हैं पुलिस नहीं बल्कि मैं आर्मी को कॉल करूँगा, जो कि जनरल पावर्स हैं।
एलन बोलती हैं ओ ज़बरदस्त, देखो ज़रा ये शाइन कैसे कर रही है। ये जो भी स्पेसशिप थी जब ये नीचे इन लोगों के सामने आई आंखों के, इट्स वेरी वेरी शाइनी, बहुत चमकती हुई है। मिसेस स्पेल्डिंग बोलती हैं लो भाई, मेरे रोज़ गार्डन के ऊपर ही आके लैंड कर गई है ये तो। एलन बोलती हैं लेकिन हो सकता है वैसे वाकई ये बलून ही हो। जॉन बोलता है नहीं भाई, इट इज़ अ स्पेसशिप और बिल्कुल तुम्हारे घर के बैकयार्ड, तुम्हारे घर के सहन में ही आगे गिरी है। लेकिन एलन बोलते तो मेरे इतना चमक क्यों रही है, इफ इट्स अ स्पेसशिप व्हाई इज़ इट शाइनिंग दैट मच। जॉन बोलते हैं आई डोंट नो, लेकिन मैं जाके पता करके आता हूँ, और फिर जल्दी से भाग कर उसके पास चले आता है। एलन बेचारी परेशान होकर उसे रोकती रहती है कि डोंट गो देयर, प्लीज़ कम बैक, लेकिन जॉन इज़ ऑलरेडी देयर। अब स्पेल्डिंग बिल्कुल हैरान परेशान घर से बाहर निकलते हैं और वो आके बोलते हैं कि आई गॉट जनरल पावर से मेरी बात हो गई है और उन्होंने बोला है कि ही इज़ कमिंग ओवर, वो जल्दी पहुंच रहे हैं यहाँ पे। ही सेड दे हैव बीन वॉचिंग दिस थिंग, कह रहे हैं कि वो बहुत देर से, बहुत टाइम से उसको नोट कर रहे हैं, ऑर्बिट में घूम रही है। दे डोंट नो राइट नाउ कि वो क्या चीज़ है। लेकिन फिर एलन बोलती हैं इसका मतलब कि इस चीज़ का ताल्लुक़ दुनिया से है ही नहीं, यानी कि ये जहाँ से भी ये चीज़ आई है ये हमारी दुनिया से इसका ताल्लुक़ ही नहीं है, जो तो और स्केरी बात हो गई। स्पेल्डिंग बोलते हैं दे बिलीव इट्स, उन्हें तो यही लगता है मिलिट्री को कि कहीं और से कोई चीज़ आई है, इट्स फ्रॉम आउटर स्पेस, किसी और स्पेस, किसी और प्लानट से ये आई है। एंड जॉन्स डाउन देयर, और एलन बोलती है कि जॉन तो वहीं चला गया है। तो बोलती हैं कि डैडी आप ज़रा गन लेके आएँ जल्दी से, ताकि अगर कोई एलियन ही इसमें से निकले और वो हम पे हमला करे, मैं जॉन को बचा तो सकूँ। जल्दी से उन्हें बोलती प्लीज़ आप ज़रा गन लेके आएँ। लेकिन स्पेल्डिंग क्या बोलते हैं कि नहीं भाई, अभी गन वन की बारी नहीं है, परहैप्स वीड बेटर लीव द हाउस अंटिल द आर्मी गेट्स हियर। वो कहती है कि हो सकता है, मिस्टर स्पेल्डिंग कहते हैं कि जब तक आर्मी यहाँ पे पहुँच नहीं जाती, हमें चाहिए कि हम घर को खाली कर दें, क्योंकि फिर जाहिर है कि क्राइम सीन बन जाएगा, कोई स्पेसशिप आया है, क्या बोलेंगे हम। तो बेहतर है कि जब तक आर्मी वाले लोग आ नहीं जाते हैं हम अपने घर को खाली कर दें। एलन बोलती है लेकिन हम जॉन को छोड़ के नहीं जा सकते। स्पेल्डिंग बोलते हैं तुम नहीं जा सकती, मैं तो जा सकता हूँ। वाई, इट्स नॉट मच लार्जर देन अ कार। फिर वो कहते हैं कि ये स्पेसशिप जो है ये गाड़ी जितनी लग रही है, वैसे इतनी कोई लंबी बड़ी सी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ कार। और कहते हैं कि मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि ये स्पेसशिप नहीं है, यकीनन कोई मीची और ही है, यानी कि अभी भी उन्हें लग रहा है कि ये कोई स्पेस फ्रॉक यहाँ से उड़ता चढ़ता पड़ता आ गया। एलन फिर बोलती हैं, उन्हें रिमाइंड करवाती हैं कि मीटियोर्स आर ब्लेजिंग हॉट। जो मीटियोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, लिटरली देयर फायर बॉल्स। स्पेल्डिंग बोलते हो सकता है कि ठंडा वाला मीटियोर हो। एलन बोलती है लुक एट इट, इट्स ओपनिंग, यानी कि अब स्पेसशिप फाइनली खुल रही है। द होल साइड इज़ ओपनिंग, और सिर्फ कोई एक दरवाज़ा नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक साइड इसकी खुल गई है। वो जॉन को बोलते हैं कि पीछे आ जाओ। मिस्टर स्पेल्डिंग बोलती हैं ओ क्यों, पीछे क्यों बुला रही हो उसे, यहाँ से कोई एलियन तो नहीं, इस स्पेसशिप में से अ मैन इज़ गेटिंग आउट ऑफ इट। कहीं अब तो मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा, एक आदमी निकल रहा है, हम इसको बोलेंगे कि भाई अपनी इस गाड़ी को तुम कहीं और खड़ा कर दो। बोलती है रॉजर से जाओ, रॉजर जरा तुम इसको बोल के आओ। स्पेल्डिंग जो है वो थोड़ा सा घबराते हुए बोलते हैं अगर ये वाकई एक आदमी ही है तो। एलन जो है, यहाँ से ये लोग दूर से देख रहे हैं कि जो जॉन है वो तो बड़े उस आदमी से हाथ मिला रहे हैं और सब कुछ। एलन उसे दोबारा बुलाती है कि तुम वापस आ जाओ। मिसेस स्पेल्डिंग बोलती हैं जब तुम वापस आओ जॉन तो अपने साथ इस आदमी को भी लेके आना जो अभी अभी इस स्पेसशिप नुमा चीज़ से निकला है। स्पेल्डिंग बोलते हैं देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द वे दैट क्रिएचर लुक्स। वो कहते हैं मुझे तो लग रहा है कि ये क्रिएचर जैसे हमें देख रहा है इसमें कुछ ना कुछ मसला है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, इट्स नॉट अ मैन। कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि अगर ये कोई आदमी नहीं है तो यकीनन ये कोई मॉन्स्टर है, कोई बला आ चुकी है ये। मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं कि भाई मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, तुम पता नहीं क्यों डर रहे हो, अच्छा खासा आदमी तो है बिल्कुल। जॉन और वो विजिटर जो हैं जब इस स्पेसशिप से उतरे हैं वो दोनों एक साथ मिलकर इन लोगों के पास आ जाते हैं। जो विजिटर आया है अभी स्पेसशिप से निकल के, ही इज़ इन हिज 40s, यानी कि ही इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, अमंग 40 यानी कि 40s के अंदर है। प्लेजेंट लुकिंग मैन, माइल्ड, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, नॉर्मल दिखने में है। साइड विस्कर्स हैं इनके साथ, यानी कि इनकी जो कलमें हैं वो बड़ी बड़ी हुई हुई हैं, लंबी लंबी हुई हुई हैं। और हैरत की बात क्या है कि ये 1960 में तो पहुँचे अमेरिका, लेकिन कपड़े कौन से पहने हैं, 1860 के ज़माने के कपड़े पहने हुए। अजीब सी बात है ये। लेकिन हमने याद है इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ये जो आपके पास क्रेटन है, ही वांटेड टू कम टू 1860, लेकिन किसी गलती की वजह से 18 के बजाय 1960 में आ गए थे, राइट।
अब जब ये पहुंच जाता है इन लोगों के पास तक बैकयार्ड में, तो ये सब एक दूसरे को बड़े गौर से देख रहे हैं, यानी कि मिसेस स्पेल्डिंग, एलन, जॉन, दे आर लुकिंग एट क्रेटन विद कि कौन चीज़ है, ये कहाँ से आया, और वो एलियन इन लोगों को भी ऐसे ही देख रहे हैं कि भाई ये लोग कहाँ से आ गए हैं, एंड कौन है, इक्वली इंटरेस्टेड। जो विजिटर है यानी कि जो स्पेसशिप से आदमी निकला है, वो इन लोगों को बोलता है आई सीम टू हैव मेड अ मिस्टेक, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती कर दिया, आई बेटर गो बैक एंड स्टार्ट अगेन। जो कहते हैं कि अब मैं दोबारा वापस जाता हूँ और फिर से स्टार्ट करता हूँ ताकि मैं अपनी उस गलती को सही कर सकूँ। और गलती क्या है कि 1960 में आ गए हैं और पहुँचना कब था, 1860 में पहुँचना था, ठीक है। लेकिन स्पेल्डिंग बोलते हैं नहीं नहीं भाई अभी से कहाँ जा रही हैं, यू हैव ओनली जस्ट अराइव्ड, अभी तो आप आए हैं, कम इन, अंदर आए हमारे घर के, आई डोंट नीड टू टेल यू बट अ प्लेजर दिस इज़, कहते हैं कि आपसे मिलना तो बहुत हमारे लिए खुशी का बायस है, प्लीज़ प्लीज़ हमारे घर के अंदर चलें। तो विजिटर वो बोलते हैं कि क्रेटन, मेरा नाम है क्रेटन, एंड दिस इज़ द रॉन्ग कॉस्ट्यूम इज़न्ट इट, कहते हैं कि मैं जो कपड़े पहन के आऊँ यकीनन वो मैं गलत ज़माने के कपड़े पहन के आ गया हूँ। स्पेल्डिंग बोलते हैं हैं तो आप थोड़े पुराने ज़माने के कपड़े पहन के आ गए हैं। मिसेस स्पेल्डिंग लेकिन बोलती हैं बट यू आर लुकिंग वेरी ऑफुली हैंडसम, कि आप दिखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। क्रेटन का इन्हें थैंक यू करते हैं और फिर ये लोग सब जो हैं वो अंदर की तरफ अपने घर में चले आते हैं। सो फार दे वर इन द बैक यार्ड, बट नाउ ये अब अपने घर के अंदर जा रहे हैं। लेकिन मिसेस स्पेल्डिंग जो हैं उनकी तमाम इस कहानी में टेंशन क्या है कि क्रेटन ने स्पेसशिप ला के इनकी खड़ा कर दिया इनके रोज़ गार्डन में। अब बेचारी बार बार यही सबको बोल रही है, इसको बोलो कि गाड़ी हटाए, इसको बोलो कि गाड़ी हटाए, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। अभी भी जब ये लोग अंदर जा रहे थे वो अपने हस्बैंड को रोक के बोलते हैं कि भाई आस्क हिम, इसको ज़रा बोलो ना कि अपनी स्पेसशिप को हटा दे मेरे गार्डन में से। लेकिन मिसेस स्पेल्डिंग इनको कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए आगे चले जाते हैं। मतलब आप सोचें कि देयर इज़ लिटरली अ स्पेस शिप जो कि इनके गार्डन में आके लैंड कर गई है। मिसेस स्पेल्डिंग की परेशानी क्या है कि मेरे पौधे ख़राब हो रहे हैं, उसको बोलो अपने कहीं और खड़ा करें अपनी गाड़ी को ले जाकर। एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट लिसनिंग टू हर, जाहिर सी बात है इसीलिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पेल्डिंग जो है अब वो उन्हें अपने घर के अंदर लेके आते हैं। अभी इतना डर रहे थे स्पेल्डिंग, लेकिन अब अचानक से उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। आप लोग को याद है हमने शुरू में पढ़ा था कि ये एक टेलीविज़न शो को होस्ट करते हैं। अब मुझे बताएं कि इफ़ देयर इज़ एन एलियन, तो जितने भी टीवी के लोग हैं दे वुड वांट कि वो एक शो इनके साथ करना, एक न्यूज़ ब्रेक करें इनके बारे में, एक इंटरव्यू उनका करें, एंड हूएवर विल ब्रेक दैट न्यूज़ विल हैव द मोस्ट सक्सेस। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी न्यूज़ ब्रेक करना। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन इन स्पेल्डिंग्स माइंड। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि वो एलियन की न्यूज़ खुद ही ब्रेक करें, उसका इंटरव्यू भी वो खुद ही लें। दैट्स वाई ही इज़ नाउ वेरी एक्साइटेड। पहले कितना डर रहे थे, अब बिल्कुल एक्साइटेड हैं। क्रेटन उन्हें लेके आते हैं स्पेल्डिंग के अंदर, कहते हैं कि आप थक गए होंगे, प्लीज़ ज़रा बैठें। क्रेटन कहते हैं कि हाँ मैं थक तो गया हूँ, लेकिन वो हर चीज़ को ना बहुत डिलाइटेडली, बहुत ऐसे देख रही है कि यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ। जैसे बच्चे खुश होते हैं ना किसी जगह पे जाके, क्रेटन इज़ जस्ट एक्टिंग लाइक दैट, कह रहे हैं कि इट्स बेटर देन आई होप। कहते हैं कि जो मैंने सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर है ये दुनिया को। तो स्पेल्डिंग बोलते हैं बेहतर क्या मतलब, किस चीज़ से बेहतर। क्रेटन बोलते हैं द हाउस, इसको आप लोग घर ही कहते हैं ना, और या फिर ये अपार्टमेंट है। तो स्पेल्डिंग बोलते हैं नहीं नहीं ये घर है स्टेट ऑफ मैरीलैंड के अंदर। तो क्रेटन बोलते हैं और ये 20th सेंचुरी है, आप लोग अब 20th सेंचुरी में पहुंच चुके हैं अपनी दुनिया के। लेकिन कह रहे हैं अगर मैं ये बात सोचूं कि 20th सेंचुरी में पहुंचने के बाद भी अगर आप लोगों का इतना बुरा हाल है, तो ये तो मुझे इस अफसोस में थोड़ी देर के लिए बैठ जाना चाहिए। यानी कि ही वॉज थिंकिंग कि अगर मैं 20th सेंचुरी तक पहुंचूंगा तो ये इंसान कुछ तरक्की वरक्की कर चुके होंगे। लेकिन जब ये 20th सेंचुरी में आए हैं तो यहाँ पे हाल क्या है, यहाँ पे हाल ये है कि देयर इज़न्ट मच सक्सेस। और कह रहा है कि इस वजह से मुझे इस अफसोस में थोड़ी देर के लिए बैठ जाना चाहिए कि आप लोगों ने 20th सेंचुरी में पहुँच के भी कुछ काम नहीं किया। ठीक है एवरीवन, चले भाई। एलन फिर बोलती हैं तुम अमेरिकन नहीं हो, यानी कि क्या तुम्हारा ताल्लुक़ अमेरिका से नहीं है। क्रेटन बोलते हैं व्हाट अ नाइस थॉट, कैसे समझ की बातें तुम सोचती हो, लेकिन मैं अमेरिकन नहीं हूँ। जॉन बोलते हैं लेकिन तुम इंग्लिश लग रहे हो, यानी कि तुम्हारा ताल्लुक़ इंग्लैंड से लग रहा है। क्रेटन बोलते हैं कि वाकई मेरा एक्सेंट इतना बुरा है,
जॉन बोलते नहीं नहीं बहुत अच्छा एक्सेंट है, तभी तो लग रहा है कि तुम इंग्लैंड से हो। स्पेलिंग पे पूछते हैं तो फिर तुम भाई हो कहाँ से, वेयर आर यू फ्रॉम मिस्टर क्रेटन। क्रेटन इवेसिवली का मतलब है वो बात को अपने पॉइंट से हटाते हुए अंदाज में बोलता है, थोड़ा सा इग्नोर करते हुए कि किसी और जगह से आया हुआ है, कोई और जगह है वो। स्पेलिंग बोलते हैं ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ के ऊपर ही से, राइट। क्रेटन बोलते हैं नहीं भाई, नॉट ऑन दिस प्लानट, इस प्लानट से नहीं। तो एलन पूछते हैं कि तुम मार्स से आए हो। क्रेटन बोलते हैं ओ डेयर नो, बोलता है नहीं भाई बिल्कुल नहीं, मार्स के ऊपर तो कोई भी नहीं रहता। कहते हैं कि एटलीस्ट मैं तो किसी को नहीं जानता जो कि मार्स के ऊपर रहता, बिल्कुल खाली प्लानट है वो। एलन फिर बोलती है आई एम श्योर यू आर टीजिंग अस, मुझे लगता है कि तुम हमें सिर्फ तंग कर रहे हो, तुम हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो और फिर तुम पब्लिसिटी स्टंट है तुम्हारा ही और फिर तुम चले जाओगे। कैप्टन बोलता है नहीं भाई, ये सच है कि मैं किसी और दुनिया से आया हूँ, कि मैं किसी और स्पेस से आया हूँ, किसी और प्लानट से आया हूँ। स्पेल्डिंग फिर बोलते हैं कि आई डोंट सपोज यू इट कंसेंट टू माई इंटरव्यू। देखो फिर से अपनी बात पे आ गए, कह रहे हैं कि मुझे इस बात का भरोसा है कि आप मुझे अपना इंटरव्यू करने की इजाज़त दे देंगे। कंसेंट का मतलब होता है अलाउ करना, परमिशन देना। तो क्रेटन बोलते हैं कि मैं तो दे दूंगा, लेकिन आपकी अथॉरिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी इस बात को, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी कि आपने मेरा कोई इंटरव्यू किया। स्पेल्डिंग बोलते हैं हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता कि ऐसा होगा। तो क्रेटन बोलते हैं वेल आई पिकअप थिंग्स, यानी कि बोलते हैं कि मैं चीज़ों को समझ जाता हूँ, होने से पहले आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है। और कहते हैं कभी भी मैं आपको बता दूं कि कुछ मिनट्स के बाद आपके इस घर में आर्मी की जानिब से बहुत सारे लोग आ जाने वाले हैं और वो आके यहाँ पे मुझे क्वेश्चन करेंगे, और आप ही की तरह वो लोग भी जो हैं वो बहुत परेशान हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या करूँगा और मैं क्या नहीं करूँगा। और स्पेल्डिंग बोलते हैं कि हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वाह भाई ज़बरदस्त, ये किस तरह का क्रिएचर है जो कि किसी और प्लानट से आया और फिर उस प्लानट से आने के बाद ये अब ही कैन इवन प्रेडिक्ट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई दिस इज़ समथिंग रिमार्केबल, राइट। इंसान तो ऐसा नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। वो अर्थ को छोटा बोल रहा है, इट लुक्स लाइक उनका अपना प्लानट शायद कोई बहुत एडवांस, बहुत बड़ा, बहुत ज़बरदस्त है, राइट। और कह रहा है कि आई हैव बीन स्टडीइंग इट फॉर ईयर्स, मैं तो इसको हज़ारों सालों से पढ़ता चला आ रहा हूँ। वन माइट से कि यू पीपल आर माई हॉबी, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि तुम लोग मेरी हॉबी हो, तुम लोगों के बारे में पढ़ना, जानना, कैसे काम करते हो, क्या काम नहीं करते हो। और कहते हैं कि ये तुम लोगों के डेवलपमेंट का हिस्सा है, स्पेशली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुम लोग आगे कैसे बढ़ोगे इस वक्त से। तो जॉन बोलते हैं क्या तुम अपने प्लानट से निकलने वाले पहले शख्स हो जो कि स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। तो क्रेटन बड़ा हंस के जवाब देता है इस बात का, बोलता है ओह माय गॉड नो, बिल्कुल नहीं, एवरीवन ट्रैवल्स, इनके प्लानट पे जितने लोग रहते हैं वो सब स्पेस को ट्रैवल करते हैं। लेकिन आगे बोलते हैं लेकिन तुम्हारे प्लानट को कोई विजिट करना चाहता नहीं है, जो तुम्हारा अर्थ का प्लानट है, नोबडी वांट्स टू कम हियर। बोलता है मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जितनी स्टडी मैंने किया तुम लोग तो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हो, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो आना नहीं चाहते तुम्हारे प्लानट पर। फिर अब वो इन लोगों को बताना शुरू करता है जो उसने स्टडी में पढ़ा है अर्थ के बारे में। बोलता है कि प्लानट अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्टिनेंट्स, नंबर ऑफ़ लार्ज आइलैंड्स भी आपके पास मौजूद हैं। उसके बाद इट इज़ मोस्टली वाटर, एक आपका मून है, और सिविलाइजेशन आपके पास अभी सिर्फ बन रही है, बढ़ रही है। ओके, सिविलाइजेशन का मतलब है कि इंसान जो तरक्की का सफ़र है, अकॉर्डिंग टू क्रेटन, जब वो 20th सेंचुरी में पहुंचा है दुनिया, ही सेइंग कि आप लोग अपने तरक्की के सफ़र को, सिविलाइजेशन को सिर्फ अभी स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले की वर्ल्ड हिस्ट्री कितनी डीप है, बट अकॉर्डिंग टू दिस एलियन इट्स जस्ट इन द बिगिनिंग स्टेजेस, यानी कि हमने अभी तक कुछ हासिल नहीं किया। अकॉर्डिंग टू दिस क्रेटन, इंसान जो है वो अभी तक सिर्फ अपने डेवलपमेंटल स्टेज के बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पर खड़े हुए हैं। क्रेटन स्पेल्डिंग बड़े हैरान होकर बोलते हैं जस्ट बिगिनिंग, क्या मतलब आपका सिर्फ स्टार्ट करें, हम लोग तो बहुत कुछ। क्रेटन उनको बीच में से रोकते हुए बोलते हैं यू आर ओनली इन द इनिशियल स्टेज, अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के स्टेजेस पे मौजूद हैं, जो कि बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग क्या चीज़ें करते हैं। और फिर बोलते हैं आई डू होप आई एम नॉट साउंडिंग पैट्रोनाइजिंग। पैट्रोनाइजिंग का मतलब होता है कि मैं बहुत गुरूर वाला नहीं लग रहा कि मैं आपको नीचा दिखाऊँ, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड टू नो कि आप लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो एलन बोलती हैं भाई ये पहले हम तुम्हें बता दें कि वी आर वेरी प्राउड, हम अपने प्लानट के ऊपर, अपनी डेवलपमेंट रिसर्च के ऊपर वी आर सो मच प्राउड।
क्रटन बोलते हैं बिल्कुल मुझे पता है, इंसानों का यही सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव ट्रेट है। ट्रेट का मतलब इंसानों की एक यही बहुत पुरानी आदत है कि वो बहुत जल्दी अपने ऊपर प्राउड फील करने लगते हैं। लेकिन फिर वो बोलते हैं मुझे अभी तक यकीन भी नहीं आ रहा कि मैं फाइनली अर्थ पे पहुंच गया हूँ। अचानक से कमरे में कोई और एंटर होता है बड़े ज़ोर से, बड़े रोब और दबदबे से। और ये कौन है? ये है आपके पास जनरल पावर्स। जनरल पावर्स कौन है? जनरल का नाम ही किसके साथ लिखा होता है? फ़ौजी के साथ लिखा होता है। ये भी एक फ़ौजी है अमेरिका के। और ये एक विगरस का मतलब दिखने में बहुत सख्त मिजाज लग रहे हैं। कमरे में एंटर होते हैं, इनके साथ इनका एक एड यानी कि इनका एक असिस्टेंट भी एंटर होता है। और फिर वो आके बोलते हैं ऑल राइट फोक्स, बताओ मुझे दोस्तों, हमने पूरे के पूरे घर को फ़ौजियों से, अपनी ट्रूप्स को हमने कंट्रोल में लेके आ गए हैं, मुझे बताओ कि वो मॉन्स्टर कहाँ पे है। तो क्रटन बोलते हैं मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं हूँ आपका मॉन्स्टर। पावर्स हैरान होते हैं, बोलते हैं वाकई, और तुम एक फैंसी ड्रेस शो में जा रहे हो क्या 1800 के कपड़े पहन के? तो क्रटन उनको बोलता है कि आई होप द कॉस्ट्यूम इन द पीरियड। उसने कहा मुझे लगा था कि मैं 1800 में ही जाऊँगा, वो तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ गलती से, लेकिन मैं ही हूँ आपका मॉन्स्टर। तो पावर्स मिस्टर स्पेल्डिंग से बोलते हैं कि रॉजर ये है कौन है ये जोकर? उन्हें यकीन नहीं आता कि ये एलियन है। स्पेल्डिंग बोलते हैं यही तो है मिस्टर क्रटन। मिस्टर क्रटन आए हैं उस अजीब सी चीज़ में जो कि बाहर खड़ी भी है, और ये किसी और प्लानट से आए हैं। पावर्स बोलते हैं मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, आई डू नॉट बिलीव इट एट ऑल। एलन सेज लेकिन ये सच बात है, इट इज़ ट्रू, वी सॉ हिम गेट आउट ऑफ द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। कहते हैं कि फ्लाइंग सॉसर, इस पर कहते हैं कि हमने उसे उस सॉसर यानी कि उस गोल सी चीज़ में से जो उड़ती हुई आई थी, हमने उसे बाहर निकलते हुए भी देखा। पावर्स फिर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर करते हैं कि कैप्टन तुम जाओ ज़रा और जाके शिप को इन्वेस्टिगेट करो, लेकिन केयरफुल रहना, किसी चीज़ को टच नहीं करना और किसी को भी उस स्पेसशिप के नज़दीक नहीं जाने देना। अब मिस्टर स्पेल्डिंग से वो और इन सब को साइड पे हटा के जो जनरल पावर्स हैं वो आते हैं क्रटन के सामने, और अब वो उससे सवाल करते हैं अच्छा भाई, तो तुम्हारा ये कहना है कि तुम जो यहाँ पहुँचे हो वो किसी दूसरे स्पेसशिप से पहुँचे हो, यानी कि ही स्टिल डजंट बिलीव इट। क्रटन बोलते हैं जी हाँ बिल्कुल मैं पहुँचा हूँ, और ये बिल्कुल मैं आया हूँ आपके पास, आपने बड़ा अच्छा सा यूनिफॉर्म पहना हुआ है, फ़ौजियों का अपना पूरा एक यूनिफॉर्म होता है, यू पीपल मस्ट हैव सीन राइट। लेकिन वह कहते हैं मुझे तो ये पसंद था कि आप एक मेटल का यूनिफॉर्म पहन के आते और आपके सर पे फेदर्स वाली टोपी होती जो कि रोमन्स पहनते थे अपने ज़माने में। तो पावर्स बोलते हैं तुम जिस यूनिफॉर्म की बात कर रहे हो दिस वाज 500 ईयर्स अगो, उस ज़माने का यूनिफॉर्म था। आर यू श्योर? क्या तुम अर्थ से नहीं हो? क्रटन बोलते हैं हाँ बिल्कुल आई एम श्योर। पावर्स बोलते हैं मैं तो बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देनी है हमें कि तुम कहाँ से आए हो, तुम क्यों आए हो। क्रटन बोलते हैं एनीथिंग टू अप्लाई, जो आप कहें। वो उससे पूछते हैं फिर कि तुम किस प्लानट से आए हो? वो बोलता है एक ऐसा प्लानट जिसके बारे में आपने कभी सुना हुआ नहीं है। फिर पावर्स उससे पूछते हैं अच्छा अब मुझे तुम ज़रा ये बताओ कि तुम्हारा जो प्लानट है वो है कहाँ पे? वो बोलता है कि आपको ये भी नहीं पता कि वो प्लानट है कहाँ पे। पावर्स बोलते हैं हमारे सोलर सिस्टम से। वो कहता है किसी और सोलर सिस्टम से। पावर्स बोलते हैं सुनो बस्टर, यानी कि वो उसके गुस्से से बोलते हैं कि मुझे कोई तुम्हारे साथ गेम वेम नहीं खेलने, मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि तुम कहाँ से आए हो, तुम क्यों आए, क्योंकि हमारी दुनिया का लॉ इस चीज़ को रिक्वायर करता है। कर्टन बोलता है इट्स पॉसिबल, लेकिन अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने बैठूंगा भी तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर किसी मैथमेटिशियन को आप यहाँ पे ला के बिठा दें तो हो सकता है फिर उसे समझ आ भी जाए, लेकिन आपको बताते बताते अगले 500 साल गुजर जाएंगे, लेकिन फिर तो आप मर चुके होंगे, क्योंकि आप लोग तो मर जाते हैं। ये क्या बात हुई? इसका मतलब कि ये क्रटन जिस प्लैनेट से आया है वहाँ के क्रिएचर्स मरते भी नहीं हैं, क्योंकि इसे इस बात पे भी हैरानी है कि इंसान जो हैं वो मर जाते हैं। पावर्स यही पूछते हैं क्या मतलब इस बात का कि हम मर जाते हैं? क्रटन बोलता है पुअर फ्रेजाइल बटरफ्लाइज। वो कह रहे हैं कि इंसान तो सिर्फ बेचारी तितलियों की तरह हैं, कुछ दिन के लिए ज़िंदा रहते हैं और फिर मर जाते हैं। कहता है कि हम जो लोग हैं, जो हमारा प्लानट है, जो हमारी स्पीशीज़ हैं, हम लोग तो कभी मरते ही नहीं हैं। पावर्स गुस्से में बोलते तुम मरोगे और तुम मेरे ही हाथों से मरोगे अगर मुझे पता चला कि तुम कोई स्पाई हो, तुम किसी मुल्क के जासूस हो, या फिर तुम कहीं से कोई एलियन बन के आए हो। क्रटन बोलता है लेकिन मुझे लगता है कि आप इतने ज़्यादा जालिम तो नहीं बनेंगे मेरे साथ। अचानक से उनका असिस्टेंट अंदर आता है जो स्पेसशिप को चेक करने गया था। ही कम्स इन द रूम और वो बहुत हैरान परेशान है। पावर्स पूछते हैं व्हाट डिड यू फाइंड? एड बोलता है कि आई एम नॉट श्योर, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो पूछते हैं क्या मतलब तुम्हारा? डू योर बेस्ट टू
डिस्क्राइब व्हाट यू सॉ। कहते हैं कि तुम अपनी तरफ से कोशिश करो तुमने जो कुछ देखा है मुझे बताने की, तुमने क्या देखा, वो क्या चीज़ थी। फिर 8 बताता है कि इट्स एलिप्टिकल। एलिप्टिकल का मतलब क्या होता है? एक आपके पास होता है सर्कुलर शेप, सही है, सर्कल, एक होता है ओवल। एलिप्टिकल मतलब आप समझें कि आपने एक सर्कल को थोड़ा सा फ्लैट कर दिया, फ्लैट सर्कल ओवल टाइप बना दिया आपने, ठीक है, चिपटा हुआ। और कहते हैं कि उसका 14 फुट का डायामीटर है एंड इट्स मेड ऑफ एन अननोन मेटल विच शाइन्स इनसाइड एंड देयर इजंट एनीथिंग। यानी कि एक अननोन मेटल का बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा है, इट्स शाइनिंग सो ब्राइट। और स्पेसशिप के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये किसी और प्लैनेट से आया है यहाँ पर। तो पावर भी बोलते हैं क्या मतलब कुछ नहीं है? वो बोलता है ना इंस्ट्रूमेंट्स, ना खाना, ना बैठने की जगह, ना चेयर, ना टूल्स, देयर इज़ नथिंग। पावर्स पर क्वेटन को बोलते हैं कि व्हाट डिड यू डू विथ योर इंस्ट्रूमेंट बोर्ड, तुमने क्या किया है अपनी चीज़ों के साथ? क्वेटन बोलता है क्या मतलब विथ माई वॉट, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पावर्स बोलते हैं अच्छा तो फिर तुमने अपनी उस चीज़ को ट्रैवल तुमने कैसे किया, तुमने उस स्पेसशिप को चलाया कैसे? नॉर्मल सी बात है ना भाई, आपको चीज़ें चाहिए तो होंगी कंट्रोल करने की, और यहाँ पे स्पेसशिप के अंदर देयर इज़ नथिंग टू कंट्रोल द स्पेसशिप, इज इट इवन पॉसिबल? बट वो कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही आया हूँ, क्रेटन कह रहा है, एलियन कह रहा है। पावर्स कहते हैं क्या मतलब तुम्हें नहीं पता, तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो अगर तुम ना बताओ हमें तो। यू क्लेम यू ट्रैवल फ्रॉम आउटर स्पेस, तुम आउटर स्पेस से इतने लाइट ईयर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करके आए हो एक ऐसी मशीन है जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है। क्वेटन बोलता है बट भाई हमारे प्लेनेट पे तो ये कार्स बहुत कॉमन है, और हो सकता है एक ज़माने में पता भी हो किसी को कि कैसे चलती हैं, लेकिन अब तो हम पता भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि कोई मैकेनिक कुछ है प्लेनेट का उसे पता हो कि कैसे चलती है गाड़ी, लेकिन हम तो बस बैठते हैं जहाँ हम सोचते हैं वहाँ हम पहुँच जाते हैं। तो वो कहते हैं जनरल हम मैकेनिक थोड़ी हैं, ना आप है ना मैं हूँ, तो मेरे प्लेनेट के किसी मैकेनिक को आप बुलाएं पता करने के लिए, आई डोंट नो हाउ दीज थिंग्स वर्क, लेकिन हम बस बैठते हैं और हम आ जाते हैं। दिस शोज़ कि कितने ज़्यादा एडवांस्ड है इनकी टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ के जो रॉकेट्स और स्पेसशिप भी होते हैं उनमें भी हज़ारों किस्म के इंस्ट्रूमेंट बोर्ड्स होते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग बग़ैर किसी इंस्ट्रूमेंट बोर्ड को ट्रैवल करके आ रहे हैं स्पेसशिप के अंदर, ठीक है। देन अच्छा भाई अब ये सारी बातें होती हैं तो जनरल पावर्स जो हैं वो रॉजर से बोलते हैं देखो रॉजर अब हमें तुम्हारे कमरे में इस घर में कोई प्राइवेसी चाहिए, और इसलिए अब मैं तुम्हारे स्टडी रूम में जाऊंगा इस क्रेटन के साथ। इस पेल्डिंग बोलते हैं बिल्कुल चले जाइए। पावर्स बोलते हैं मिस्टर क्रेटन एंड आई आर गोइंग टू हैव अ चैट, और तुम लोग यहाँ बैठोगे और घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि आप चीफ ऑफ स्टाफ को ज़रा कॉल करके बुलाओ, और बुलाओ नहीं कॉल करो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, सही है। स्पेल्डिंग बोलते हैं दिस वे जेंटलमैन, आ जाइए आप मेरे साथ, और वो लोग सब मिलके चले आते हैं फिर स्टडी रूम में। पावर्स फिर बोलते हैं कि आई होप आई विल बी द वन टू गेट द स्टोरी फर्स्ट। वो पावर्स जो हैं वो पावर्स से स्पेल्डिंग जो कि एक जर्नलिस्ट थे वो फौजी से बोलते हैं कि देखो मैं चाहूँगा कि मैं ही इस स्टोरी को सबसे पहले ब्रेक करूँ। पावर्स बोलते हैं कौन सी स्टोरी, कहाँ की स्टोरी, कोई स्टोरी नहीं है, कंप्लीट सेंसरशिप, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती, जब तक हम आपको नहीं बोलेंगे आप यहाँ से हिलेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने के घर के ऊपर क्या लगा दिया, मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ का मतलब है कि जनरल पावर से पूछ के ही कोई अंदर आएगा, उनसे पूछ के बाहर जाएंगे, उनसे पूछे बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एलन फिर बोलती हैं कि आई थिंक ही इज़ वंडरफुल हूएवर ही इज़। एलन बोलती हैं कि भाई मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा है जो भी है। मिसेस स्पेल्डिंग बोलती हैं कि आई वंडर हाउ मच डैमेज ही डिड टू माई रोज़ गार्डन। मिसेस स्पेल्डिंग की परेशानी क्या है? सिर्फ वो एक ही परेशानी है कि मेरे रोज़ गार्डन के साथ क्या हुआ है, मेरे रोज़ गार्डन तबाह हो गया है, उसने वहीं ला के खड़ा कर दी थी गाड़ी, अब मेरे साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। पूरी दुनिया परेशान है कि एक एलियन आ चुका है। मिसेस स्पेल्डिंग की परेशानी क्या है? उनकी परेशानी ये है कि मेरे रोज़ गार्डन के साथ अब क्या होगा, मेरे रोज़ गार्डन में फूल सारे ख़राब हो जाएंगे, सारे फूल मेरे टूट जाएंगे, दिस इज़ हर ओनली वरी, ठीक है। अब ये लोग आपस में बातें करते हैं जब जनरल पावर्स लेके चले आते हैं क्रेटन को स्टडी के अंदर। जॉन बोलता है ये बहुत अजीब सी बात है यकीन मानना कि वो एक बग़ैर खाली स्पेसशिप में बैठा स्पेस ट्रैवल करके यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब कि दे आर सो मच एडवांस्ड, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई है हमारे मुकाबले में। मिसेस स्पेल्डिंग बोलती हैं कि
वो हमारे घर रात तो रुकेगा ही ना। स्पेल्डिंग बोलते हैं ये कैसा सवाल है। मिसेस स्पेल्डिंग बोलती हैं क्या वो रात रुकेगा या नहीं रुकेगा। स्पेल्डिंग बोलते हैं आई थिंक ही विल भी, क्योंकि हमें तो मना कर दिया है, जनरल पावर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया हमारे घर के ऊपर। तो मिसेस स्पेल्डिंग उनके लिए गेस्ट बेडरूम बनाने के लिए चली जाती हैं। स्पेल्डिंग बोलते हैं बिटरली कि मुझे पता है ये कहानी जो है ना इस एलियन के आने वाली और आके जाने वाली, ये कोई और लीक कर देगा और मैं लीक नहीं कर पाऊँगा। एंड ही वॉन्ट्स के ये करे क्योंकि ख़बर इतनी बड़ी है, जाहिर सी बात है। लेकिन इन्हें डर लग रहा है कि आप कोई और जर्नलिस्ट आके लीक कर देगा। स्पेल्डिंग बोलते हैं कि जनरल पावर्स ने कहा है कि जब तक मैं कुछ ना बोलूँ कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि घर पे मार्शल लॉ है। अब सब थोड़ा परेशान हो जाते हैं। जॉन कहते हैं कि काश जब मेरे पास वक्त था मैं उसी वक्त शिप के नज़दीक जाके ज़रा देख लेता। एलन फिर बोलती हैं कि हो सकता है कि वो हमें कोई राइड दे भी दें, हमें घुमा के ले आए वो। कहाँ के देख रहे हो। जॉन बोलते हैं कि ट्रैवलिंग इन स्पेस जस्ट लाइक दोज स्टोरीज़, यानी कि जैसे हम स्टोरीज़ में सुनते थे स्पेस में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरगैलेक्टिक ड्राइव, कितना मज़ा आएगा। इधर जस्ट इमेजिनिंग कि हम क्या 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 करेंगे। लेकिन अचानक से स्पेल्डिंग बोलते हैं ये भी तो हो सकता है कि कोई इम्पोस्टर हो। इम्पोस्टर मतलब कि वो बन के आ गया हो कुछ और, वो हो कुछ और, लेकिन वो सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए एक इम्पोस्टर बन के आ गया है। एलन बोलती हैं कि आई हैव अ फीलिंग ही इज़न्ट। एलन बोलती हैं कि मुझे तो ये यकीन है कि वो नहीं है इम्पोस्टर, कि वो जो है वो एक नॉर्मल स्पेस एक एलियन ही है जो कि हमारे पास आया है, ठीक है। जॉन बोलते हैं कि आई बेटर कॉल द फैमिली एंड टेल देम आई एम ऑल राइट, यानी कि मैं अपने घर वालों को तो बता दूँ भाई कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ से जाने से मना कर दिया। अब एटलीस्ट मैं उन्हें बता तो दूँ कि मैं कब तक आऊँगा कब तक नहीं आऊँगा। असिस्टेंट बोलते हैं आई एम सॉरी, अभी मुझे यानी कि आप कॉल नहीं कर सकते, जनरल पावर्स ने मना किया हुआ है। And with this, we have जॉन भी ended बोलते हैं कि scene number हाउ 1. एम आई टू I कॉल hope you all have होम टू understood से it वेयर आई एम, correctly, यानी कि फिर मैं and घर there are कैसे no बताऊंगा questions. अपने But आप if लोगों you ने तो have मना कर any, दिया है, feel ना मैं free बाहर to जा tell सकता me. हूँ ना मैं कॉल And करूँ, while मेरे you घर are वाले doing that, परेशान, मैं don't क्या forget करूँ। to subscribe to the channel. Don't forget to स्पेल्डिंग like the बोलते हैं video कि and to असिस्टेंट को share. जनरल पावर से Thank कि आप you. ये नहीं कर सकते, आपने हमारे घर में पाबंदी लगा दी है, ये तो गलत बात है भाई। अब हम क्या करें अपने घर में, वी कैन नॉट गो एनी वेयर, वी कैन नॉट कम एनी वेयर, लाइक व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू। जो लोग सब परेशान हैं, लेकिन असिस्टेंट बोलते हैं भाई कि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, यू पीपल विल हैव टू स्टे हेयर एंड यू पीपल विल हैव टू गो थ्रू विद इट, ठीक है एवरीवन।